Hello everyone, welcome to this video and welcome back to the channel Simplifying Science with Shilpa. How are you all? I hope you all are doing good, and from today we'll start class 9 science, and we are starting with a chapter Atoms and Molecules, chapter number 3 in your science book. So we will cover all the chapters in science, physics, chemistry and bio of class 9th also, and side by side class 10th also. And today we'll start with the chapter Atoms and Molecules. So, you have to open your books. Whenever I am teaching, you have to open your books. You have to underline the main points. You have to highlight. You can use sticky notes for writing some of the extra points. But do open your NCERT book. Open your NCERT book and read along with me. You have to read each and every line along with me and highlight some of the important points. Note down some of the things in your NCERT book. Use sticky notes, or you can utilize this space also which is there in your NCERT. Okay, so starting with this chapter Atoms and Molecules, chapter number 3 in chemistry science book, page number 31. Alright, so atoms and molecules. See, in the previous chapter you have seen matter in our surrounding. आपने देखा था मैटर होता क्या है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर. मैटर पढ़ा था सबने. मैटर क्या होता है? which occupies space and volume. Now in this chapter we have to study atoms and molecules. First of all we have to study who discovered atom, who discovered molecules. So there was a scientist known as Maharishi Kannad. Maharishi Kannad, and इन्होंने बोला था कि ये जो मैटर होता है ना, ये फर्दर डिवाइडेड होता है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में. इन्होंने बोला था कि मैटर डिवाइड हो सकता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिनको इन्होंने बोला था परमाणु. महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला कि मैटर डिवाइड हो सकता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम बोलते हैं परमाणु. और जॉन डाल्टन ने ये बोला. बेसिकली जॉन डाल्टन ने इस परमाणु को नाम दिया एटम. उन्होंने बोला कि ये जो परमाणु है इन्हीं को हम एटम बोलते हैं. तो एटम होता क्या है? इनडिविजिबल यूनिट होती है. ये मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और इनडिविजिबल होती है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. दैट इज नोन एज एटम. अब देखो, एटम तो हो गया सबसे छोटी यूनिट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. देन अनदर इंडियन फिलोसोफर सेड व्हेन वी कंबाइन दीज एटम दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स. सो एटम plus atom is known as molecule. So that is how atoms and molecules were discovered. This was a contribution of some Indian philosophers. Another Indian philosopher said that atoms combine to form molecules like O plus O. It will give you O2. Some of the atoms cannot exist in free state like O. Oxygen always exists like this only. So this is a molecule. This is an atom. When atoms combine, they form molecules. Okay, so let's start reading in your book NCERT. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered how the unknown and unseen form of matter, the idea of divisibility of matter, was considered long back in India around 500 BC. An ancient philosopher Maharishi Kannad postulated that if we go on dividing matter, that is padarth. इन्होंने matter को क्या बोला था? पदार्थ. If we go on dividing matter, or you can say padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. He named these particles as परमाणु. इन्होंने क्या बोला? पदार्थ को परमाणु में डिवाइड कर सकते हैं. पदार्थ एक बड़ी चीज है, परमाणु एक छोटी चीज है. परमाणु को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन पदार्थ यानी कि मैटर को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? परमाणु. और परमाणु क्या होता है? एटम. ये इनडिविजिबल होता है. इनडिविजिबल. अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, दिस एटम और परमाणु वाज इनडिविजिबल. ही नेम दिस परमाणु. अनदर इंडियन फिलोसोफर Pakuda Kattayanam elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form. तो ये किसने दिया था? अनदर फिलोसोफर ने. कि ये जो एटम्स होते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. Whenever they are existing in combined form, we call them as molecule.
Another, around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Lysippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when these particles obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles atoms. All this was based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could not be done. देखो ये सब ना उस पे नहीं थे, किसी बहुत एक्सपेरिमेंट करके, ये सब इनके आइडियाज़ थे. ये जो था जॉन डेल्टन से भी बोल सकते हो. लखमीर सिंह में जॉन डेल्टन भी लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में अगर डेमोक्रिटस लिखा हुआ है तो आपको वही लिखना होगा. दैट एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एंड जो सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की उसको हम बोलते हैं एटम. बाकी सब तो इतना यूजफुल नहीं है. येस, बाय द एंड ऑफ 18th century साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड. इस चैप्टर में हम एलिमेंट कंपाउंड का भी डिफरेंस देखेंगे. एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन. देन एंटोनी लेवॉइजर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज by establishing two important laws. तो laws किसने दिए? एंटोनी लेवॉइजर. अब ये laws आए किस लिए? ये जो law of chemical combination है, law of conservation of mass है और constant proportion है, ये laws किस लिए आए थे? ये इस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए आए थे कि एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं. तो ये जो डिस्कवरी थी ना, ये जो फाइंडिंग्स थी, इन सबको वैलिडेट करने के लिए कुछ लॉज आए, और उन लॉज को कौन लेके आया? एंटोनी लेवॉइजर. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन, इफ यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग. नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट इज एंटोनी लेवॉइजर, who gave the laws about validating these facts. Anthony Lavoisier. तो कुछ लॉज दिए थे उन्होंने, जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था. द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट बाय लेवॉइजर एंड प्राउस्ट. दोनों ने दिए, लेवॉइजर एंड प्राउस्ट. तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बहुत इजी लॉज हैं ये, आपको कुछ रटना नहीं है, बस समझना है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब देखो इस लॉ का नाम आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास को कंजर्व रखना है, मास चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू CO2. अब इसमें जो लॉ है, इसमें जो मास है ना प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट का, वो सेम होना चाहिए. देखो मास सेम, हियर ऑल्सो मास विल बी सेम. तो बस यही बोलता है ये लॉ कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during a chemical reaction. So mass will remain same at the product side and the reactant side. mass हमेशा सेम रहना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट्स में हो या वो रिएक्टेंट में हो. तो इसमें बस यही है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. जैसे हम रिएक्शंस करते हैं कभी कभी, तो कुछ कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, कुछ कंपाउंड गैस की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाते हैं. तो आप लोग सोचते होंगे कि इस केमिकल रिएक्शन के बाद उसका मास कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता. चाहे वो प्रेसिपिटेट हो, चाहे कुछ उसमें से इवेपोरेट हो, मास हमेशा सेम रहेगा, प्रोडक्ट्स का भी एंड रिएक्टेंट्स का भी. सो लेट्स सी, इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल रिएक्शन चेंज. केमिकल रिएक्शन जब भी होती है, क्या मास चेंज होता है? नो. ओके, सो लेट्स रीड दिस एक्टिविटी इन योर बुक. Take one of the following sets X, Y of chemicals. In set X, you have to take copper sulfate, which is 1.25 gram, and sodium carbonate 1.43 gram. Similarly, barium chloride, sodium sulfate, lead nitrate, and sodium chloride. Now you have to prepare separately a 5% solution of any one pair. कोई भी वन पेयर में लेना है, 1, 2, 3 में से कुछ भी आप पेयर में ले सकते हो. या तो आप लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट ले सकते हो, या कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट. कुछ भी आपको एक पेयर में लेना है, 5% सोल्यूशन बनाना है, लिस्ट करना है X and Y इन ईच 10 ml वाटर में डाल के सोल्यूशन बनाना है. अब आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है Y का इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सोल्यूशन ऑफ X इन इग्निशन ट्यूब. इग्निशन ट्यूब में आपको X लेना है, कॉनिकल फ्लास्क में आपको Y लेना है. Now hand the ignition tube in the flask carefully. See that solution do not get mixed. देखो जब आपने ना ये फ्लास्क है, सपोज ये कोई फ्लास्क है, इसमें आपने ना टेस्ट ट्यूब में
कोई सब्सटेंस X डाला है और यहाँ पे सब्सटेंस Y है और इसके ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है, यानी कि इसका जो भी सोल्यूशन है वो इसमें मिक्स नहीं हुआ है, अभी मिक्सिंग नहीं हुई है। तो जब आप वेट कर रहे हो, सपोज ये 44 ग्राम्स का आ रहा है, अब आपने इस जो आपकी इग्निशियन ट्यूब है या टेस्ट ट्यूब है, इसमें से जो X सब्सटेंस है वो आपने Y में मिक्स कर दिया, तब भी आप देखोगे वेट 44 ग्राम्स ही रहेगा। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पुट अ कॉक ऑन द फ्लास्क, यू कैन सी इन योर diagram in your book also. Weigh the flask with its contents carefully. Now tilt and swirl the flask so that the solution X get mixed with solution Y. Weigh again. What happens in the reaction flask? Do you think that a chemical reaction takes place? Obviously chemical reaction to hoga. Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and its content change? No. The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी कोई भी मास में चेंज नहीं होगा, जितना मास प्रोडक्ट्स का था उतना ही मास रिएक्टेंट्स का भी होगा, सेम मास रहता है। तो ये था बहुत इजी सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब सेकेंड लॉ है, ये भी इन्होंने दिया था, लेवोइजियर एंड प्राउस्ट ने। सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Lavoisier, along with another scientist, noted that many compounds were composed of two or more than elements. देखो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। अब देखो कंपाउंड आया, पहले आपने पढ़ा एटम, फिर पढ़ा मॉलिक्यूल, अब आया कंपाउंड वर्ड। एटम होता है ये, मॉलिक्यूल होता है ये और कंपाउंड होता है ये। कंपाउंड बनता है दो डिफरेंट एटम से, मॉलिक्यूल बनता है दो सेम एटम से, और एटम जो फ्री स्टेट में होता है। तो ये होता है एटम, this is atom, this is molecule and this is a compound. अब देखो ये लॉ ये बोलता है कि जैसे सपोज करो H2O है, ये वाटर है, आप सबको पता है वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। अब अगर हम वाटर को कहीं से भी लें, किसी भी स्टेट से लें, किसी भी पॉन्ड से लें, किसी भी रिवर से लें, किसी भी लेक से लें, किसी भी ओशन से लें, H2O का प्रोपोर्शन हमेशा यही रहेगा। H2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल रहेगा, यानी कि 2:16 एंड इफ वी कैंसिल इट इनटू सिंपलर फॉर्म इट विल बी 1:8। तो ये जो वाटर है ना, ये आपको हमेशा 1:8 के रेशियो में ही मिलेगा, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी पानी लें, फॉरेन कंट्रीज से कहीं से भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं से भी पानी लोगे, वाटर का रेशियो हमेशा 1:8 लेगा। चाहे वो यूरोप से लो, चाहे वो यूएस से लो, अफ्रीका से लो, जापान से लो, चाइना से लो, इंडिया की किसी भी स्टेट से लो, किसी भी नदी से, किसी भी ओशन से, हमेशा वाटर का रेशियो क्या रहेगा 1:8। यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो ये भी नाम से ही पता चल रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हम इसे बोलते हैं रेशियोज को, तो यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेट्स रीड इन योर बुक नाउ। नाउ दीज साइंटिस्ट सेड दैट compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it. इससे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से आया, पानी चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो आरओ वाटर हो, चाहे वो टैप वाटर हो, कैसा भी पानी हो, रेशियो क्या रहेगा हमेशा 1:8। In a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen to the ratio of mass of oxygen is always 1:8, whether the source of water, whatever the source of water is. Thus, if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of water and 8 gram of oxygen are always obtained. 1 gram हाइड्रोजन का होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म 1:8 है। सिमिलरली इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3। NH3 होता है ना, NH3, तो ये भी हमेशा 14:3 के रेशियो में ही मिलेगा। हाइड्रोजन का 1:3 एंड नाइट्रोजन का 14 होता है। तो आप कहीं से भी अमोनिया लोगे हमेशा 14:3 के रेशियो में ही आएगा। तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो आप नाम से चीज़ें पढ़ोगे ना, आधी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास को कंजर्व रखना है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन को कांस्टेंट रखना है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहेगा। This led to the law of constant proportion, which is also known as law of definite proportion. This law was stated by Proust, as in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. Elements हमेशा definite proportion में रहेंगे, चाहे वो कहीं से भी आया हो, whatever the source may be, but they will remain in the same ratio.
The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation to these laws. Now came John Dalton, British chemist. John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. अब देखो ये दोनों laws I think clear है. This is law of constant proportion given by Proust. बहुत इजी लॉज है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास कंजर्व रहता है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन सेम रहते हैं वॉट एवर द सोर्स में भी. अब नेक्स्ट ना कुछ और प्रॉब्लम्स आने लगी जिस प्रॉब्लम को एक साइंटिस्ट ने या एक केमिस्ट ने, ब्रिटिश केमिस्ट ने सॉल्व किया जिनका नाम था जॉन डाल्टन. आप इनकी थ्योरी भी पढ़ोगे. जॉन डाल्टन ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं लेकिन फिर भी कुछ ड्रॉबैक्स आए हैं. हर थ्योरी के बाद कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं तो हम वो थ्योरी पढ़ेंगे देन ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे एटम क्या होता है, कंपाउंड, एलिमेंट, सबका डिफरेंस. नाउ डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वाज स्टिल देन जस्ट अ फिलोसफी. अभी तक डिविजिबिलिटी का आइडिया फिलोसफी था कि इससे आगे कुछ डिवाइड हो सकता है या नहीं. क्या पता एटम भी फर्दर डिवाइड हो जाए. मैटर, क्योंकि मैटर भी डिवाइड हुआ, अब साइंटिस्ट को लगा क्या पता एटम भी फर्दर डिवाइड हो सकता है. He took the name atoms as given by Greek and said the smallest particle of matter are atom. आपने लास्ट पेज में देखा था ना, डेमोक्रिटस लिखा था. Yes, here Democritus suggested if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles atom. अब यहाँ पे जॉन डल्टन भी लिखा है. He took the name atom. Who? John Dalton. He took the name atom as given by Greeks. क्योंकि ये नाम दिया ग्रीक्स ने था पर आप दोनों लिख सकते हो. जॉन डाल्टन भी सही होगा और डेमोक्रिटस भी, क्योंकि दोनों जगह लिखा हुआ है कि एटम उन्होंने बोला था. उन्होंने बोला इंडिविजिबल पार्टिकल को हम एटम बोलेंगे. जॉन डाल्टन ने भी एटम नाम दिया एज गिवन बाय ग्रीक्स. तो पहले तो ग्रीक्स ने ही दिया था. एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स. हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. देखा मैंने आपको बोला था ना कि ये जो लॉज आए हैं ये इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है या नहीं, क्या एटम सच में इंडिविजिबल है. तो उनको ही ये वैलिडेट करते हैं. तो इस बुक में भी लिखा हुआ है हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जो ये लॉज आए थे इनसे इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो डाल्टन की थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Write down this question in your book that Dalton's atomic theory was based on two laws. First was law of conservation of mass and second was law of definite proportion. Now you can see these are the points of Dalton's atomic theory. You have to learn each and every point. Just write down, if you want, write down these points in a separate notebook or just highlight these points. Take your highlighter and start highlighting. According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, तीनों चीज़, या अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा एलिमेंट और कंपाउंड का भी, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो कंपोज करता है स्मॉल पार्टिकल से. हर चीज़ पार्टिकल से बनी हुई है. जितना भी आप मैटर देखते हो अपने अराउंड वो सब पार्टिकल से बना हुआ है. इट इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं एटम्स. क्योंकि मैटर को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो एटम्स में बनेगा. The postulates of this theory may be stated as follows. So there are 6 postulates. You have to learn by heart each and every postulate. First is all matter is made up of very tiny particles called atom. जितना भी बना हुआ है, जितना भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं एटम, which cannot be divisible further, which participate in chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम. Second is atoms are indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ये सेम लॉ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ऐसे ही जो एटम्स होते हैं ये इंडिविजिबल होते हैं. ना तो हम इन्हें क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जितने भी एटम्स होते हैं ना एक एलिमेंट के, वो सब आइडेंटिकल होते हैं मास में भी और प्रॉपर्टीज में भी. एक एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, उनका मास भी सेम होता है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. और इट इज़ ऑब्वियस ना, अगर एक सेम एलिमेंट है तो उसके सारे पार्टिकल सिमिलर होंगे, सबका मास सिमिलर होगा. लेकिन अगर एलिमेंट्स है डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. एटम होल नंबर की रेशो में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. हमने देखा था O है तो
ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू O2। तो ये होल नंबर की रेशो में कंबाइन करते हैं टू गिव कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जितने भी नंबर या काइंड होते हैं एटम के वो कांस्टेंट रहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी देखा था ना। अब यहाँ पे एलिमेंट वर्ड बहुत बार आ रहा है, आप कंफ्यूज हो गए एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो देखो आपकी बुक में ही दिया हुआ है एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस। In which chapter? I think yes. In the last chapter, I think you have learned the difference between element and compound, mixture and compound. Yes. See, in this you have already read the difference. So let's revise the difference. What are elements? Cannot be broken down into simpler substance. जैसे ऑक्सीजन O2 है, अब इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ना सिंपलर सब्सटेंस में, तो ये हो गया एलिमेंट। तो एलिमेंट बनते हैं सेम एटम से। सेम एटम से क्या बनता है? एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होते हैं? H प्लस O2। इट विल गिव यू H2 प्लस O2, H2O। H2O हो गया एक कंपाउंड, O2 हो गया एक एलिमेंट। तो एलिमेंट बनते हैं सेम से और कंपाउंड बनते हैं जैसे CO2। CO2 कंपाउंड है, NH3 कंपाउंड है, O2 एलिमेंट है। तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, तो ये होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट हो गए ऑक्सीजन O2। जब भी वो दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट। तो इसमें जितनी भी बार टर्म्स यूज हुए हैं वो एलिमेंट यूज हुए हैं, तो एलिमेंट होते हैं ये, कंपाउंड होते हैं ये। कंपाउंड डिफरेंट से बनते हैं, एलिमेंट सेम से बनता है। तो ये हैं आपके सारे पोस्टुलेट्स डाल्टन के। इसको बाय हार्ट आपको लर्न करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से बार बार लिखो। अगर लर्न नहीं होता, कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है लर्न करने में, तो लिख के लर्न करो। आपने ये रीड कर लिया अभी, अब बुक बंद करो, जितना भी याद है, चाहे एक पॉइंट याद आ रहा हो ना उसको लिखो। बार बार लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना ही लर्न रहेगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर एंड वी विल कंटिन्यू from tomorrow with the topic what is an atom, what are the modern day symbols of atoms, then atomic mass, molecule. We'll cover this chapter from tomorrow. All right, then that's all for today. Thank you for watching. If you're liking the videos, do subscribe to the channel, like the videos, comment down below. If you want more of such videos, you can tell me another method of teaching also. If you're liking this method, do comment down below and join the Telegram group for more updates. I'll be updating you there for for whatever I have to update. At the end, I'll be just posting the videos or posting the